من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف حال ربك بأصحاب الفيل مدثر سجان چھئی ردایا نبی. ہمارے شیخ صاحب ہوا کرتے تھے. اس کے ساتھ ہمارے زونل پریزیڈنٹ جناب غلام قادر پرے صاحب، یہ کیونکہ آج کل تو انہوں نے یہ جو اس کے ساتھ ہمارے بہت بڑے شاعر، ادیب، مقرر ہمارے نادم کشمیری، یہ نادم کشمیری، لیکن یہ ان کی سرزمین جو ہے یہ کبیری میں ہے. یہ بہت عرص دراز سے ادب کیا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے محترم مقام بشیر صاحب ہیں، سید بشیر احمد بخاری صاحب، یہاں کے ذی عزت شاعریوں میں سے گنا جاتا ہے. اس کے ساتھ میرے وانی گام سے آئے ہیں میرے عزیز بھائی محمد رمضان صاحب، ان کا بھی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. یہ بھی چندراما، یہ بھی تشریف فرمائے. آئی وارث عدالت میں بشیر احمد ٹھوکر صاحب کھیٹن کے رہنے والے ذی عزت شاعری اپنا ٹائم نکال کے یہاں تشریف فرما ہو رہے ہیں. محمد سبحان غاتر کھیٹن یہ بھی تشریف فرمائے ہیں یہاں، ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں. شبیر احمد خان صاحب درتپورہ کے ذی عزت شاعریوں میں سے سب یہاں. اس کے علاوہ جو بھی یہاں جن کا میں نام گن نہیں سکتا ہوں کیونکہ ہم باقی جو آئے گا اس اعتبار سے میں معذرت چاہوں گا اگر کسی کا نام میں نہیں لے سکا تو اس اعتبار سے میں آپ سب سے معذرت چاہوں. اب چونکہ ہم پروگرام مشتاق صاحب، میرے بزرگ ساتھی، میرے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ رات کوٚر میٛٲنۍ برادر اصغر چھُس بہٕ یِمن سمجھان سہیل صٲبن حکم کہ اَسہِ چھُ پگاہ کرٛیٖلہِ اندر دفترُک آغاز کرُن اور تُہۍ تہِ أنۍزیو یور تشریف. بہٕ چھُس گۄڈٕنیتھٕے معذرت ہٮ۪وان چوٗنٛکہِ اَسہِ چھِ آسان ڈسٹرکس منٛز آلریڈی کینٛہہ اپوینٹمنٹ تھایمژ. مےٚ گوٚو دیر یور یِنس منٛز، تَمہِ خٲطرٕ چھُس بہٕ تۄہہِ معذرت. مین بینہ ADC ممبر بارہمولہ وومنز ونگ ہز پریزیڈنٹ قرت جی، سن ایکس پریزیڈنٹ زوما حضرات، ایوان صدارتس مز بہت ساری تہ ساروی میانہ طرف السلام علیکم. ژیر گو واریاہ، اس لیے زیادہ کت کرن ونکس موقع پھٹ گمت. کت چھا بنا کریں، اس سون سرکاری ملازم یہ کت پہ کڑون تہ چلان. سانہ زمین یم کت پہ مکلاوک ات پہ چلان. سان نال یہ سیک تو باجر تلان اتن قشرس کرنے کی. سان باغن ہند مال کت پہ گھس کم ریٹس پہ وات ات پہ چلان. قشرس کت پہ گھس نوکری ترن ات پہ چلان. وہ اکوئی چیز بچامت سان سکولن مز بچہ پران یم زن سون مستقبل بنان. یمن کت پہ کھمو یہ جائے یم گھس اصل پہ پڑھت لیکھت ہیکن کی تاکہ صبحنس تھوک پنس کھورس تل یم سی چلان. یمن حالتن مز یہ RSS تو BJP ونکن مشینری یت کام کران یتن زن اکس عام قشرس خصوصا نوجوانس ٲس منٛز شاہ چھُنہٕ بنان کڑُن کینٛہہ. وُنہِ چھِ کتھ آسان کرنے سُہ چھُکھ آسان واتنومُت جیل، کٲنٛسہِ PSA، کٲنٛسہِ UAP، کٲنٛسہِ بدل کیٛاہ کیس. حتاکہِ آز چھنہٕ ییٖژ تہِ ایکسس کہ کانٛہہ کٲنٛسہِ دِن رٔٹِتھ پتہٕ پرٛژھوس مسلہٕ کیٛاہ اوسُس. تیٖژ تہِ چھنہٕ گُنجٲیش دِوان کینٛہہ. یِمن حالتن منٛز یہِ چھُ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہٕنٛدۍ یِم زن سیٲسی حریف چھِ، ماپا مفتی ہٕنٛدۍ یِم زن سیٲسی حریف چھِ، تِم تہِ ونان کہ یِمن حالتن منٛز اگر اکھ پارٹی یا اکھ لیڈر قٲشر قومٕچ خصوصاً قٲشر نوجوان سٕنٛز ترجمٲنی کران چھِ یِمن مسلن منٛز امن فورسن خلاف کھڑا گژھِتھ قٲشر سٕنٛز کتھ چھِ کران، سُہ چھُ محبوبہ مفتی تہٕ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی. امہِ علاوٕ چھُنہٕ کانٛہہ. اس لیے چھُ اسہِ ساروین پٮ۪ٹھ یہِ فرض بنان دپان یُس
शख्स न इंसान सुंद कदमतुक शुक्रिया अदा कर अल्लाह ताला सुन मशकूर आसान तम सारी लूख यमन जन PDP मुफ्ती साहबन कल पे लूर वज तम लूख यह लड़ाई वह मापा मुफ्ती तो PDP लड़ान इसलिए पे फर्ज आयत सपदान मशरावन अम लीडरशिप क्या कोर सान खतर तो करो यह अत मजबूत कर हर तरीके कोशिश तो खुसूसन लड़ाई मज रोल ये नौजवान मुतहद सपदुन बुजुर्गन हज रहनुमाई। कुरत जी, आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने यहाँ पे वर्कर्स कन्वेंशन किया और ऑफिस का भी इफ्तिताह किया। हमें बताइए क्या कुछ खास प्रोग्राम था और क्या मुद्दा और मकसद लेके आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर साहिबान यहाँ पे आए थे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। क्योंकि आज जो ये हमारी पार्टी ने यहाँ पे एक ऑफिस खोलने का जो ये हमारा ऑफिस खोलने का जो ये आइडिया था, इसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक यही है कि जो हमारे वर्कर साहिबान है या हमारे आम लोग हैं, उनकी बात जो है आगे हमारे पार्टी लीडर तक पहुँचाई जाए या उनके मुश्किलात का उनकी मुश्किलात जो है, उनकी परेशानियां जो है उनका अजाला किया जाए। बाकी और इसका कोई खास मकसद नहीं है। मकसद यही है कि लोगों के मुश्किलात का अजाला किया जाए। कुरत जी, अगर हम बात करें, इशारा आया है हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात होंगे, क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मैदान में उतरने के लिए रेडी है? बिल्कुल तैयार है, क्योंकि अब हमें ये चीज समझने की जरूरत है जो हमारी पार्टी का एजेंडा है। इस टाइम न सिर्फ लोग बल्कि बच्चा हर एक इंसान जम्मू कश्मीर से, न सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट से बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोग जो है हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो हमारा एजेंडा है वो लोगों के एहसास व जज्बात के साथ जो है वो लोगों के बिल्कुल मैं ऐसा कहूँगी कि वो लोगों के एहसास व जज्बात की तर्जुमानी करते हैं, उनकी वकालत करते हैं। जिस तरह से हमारी पार्टी प्रेसिडेंट मुफ्ती साहिबा आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है, जिस तरह उन्होंने अपनी बात रखी हर जगह पे, जंतर मंतर में, यहाँ पे भी वही बात, दिल्ली में भी वही बात, मुझे लगता है वो काफी है हमारे लोगों को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ देने के लिए। हमें नहीं लगता कि और जरूरत है कि लोगों के एहसास व जज्बात के साथ जो खिलवाड़ अब तक हुआ और वो लोग सहन कर पाएंगे और लोग जोड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोहेल साहब, आज बड़े अरसे बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से आज यहाँ पे कन्वेंशन किया गया, तफसील में बता दीजिए क्या कुछ खास था? मुझे लगता है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात नहीं है, लगभग काफी अरसे बाद किसी भी पार्टी का इस लेवल का यहाँ पे ऐसा एक निशस्त हुई है जिसमें पूरे इलाके से चुनिंदा वर्कर हजरात आए और वो आपस में अपने ख्यालात का एक्सचेंज करें। आज का दिन खुसूसन इसलिए खास है क्योंकि आपको पता है कि ये जो इलाका है, ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये हमेशा से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ रहा है जी। यही वजह है कि जो जितने इलेक्शन हुए यहाँ से जो कैंडिडेट उठे उनको यहाँ के आवाम ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो जाफिशा वर्कर्स हैं उन्होंने अपनी मेहनत से भारी अक्सरियत से जिता के आवाम में भेजा है। और अब जबकि डिलिमिटेशन हुई है और इलाके हैं जो इसके साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन एक अलमिया ये रहा, एक परेशानी ये रही है कि कोई ऐसी सेंट्रल प्लेस नहीं थी जहां पे हमारे वर्कर हजरात या आम आवाम भी जिनको किसी तरह की मुश्किल हो, जो हम तक बात अपनी पहुंचाना चाहते हो, उनके लिए कोई सेंट्रल स्पेस नहीं थी। तो इसलिए हमारे वर्कर्स की ही सजेशन पर हमने आज क्रीरी में वागुरा क्रीरी जोन को लेके अपनी पार्टी का एक ऑफिस है उसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया, ताकि हमारे पार्टी के जो वर्कर हजरात हैं जो राब्ते में रहना चाहते हैं, वो कोई भी आम शख्स हो जिसको कोई परेशानी हो, वो हम तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हो, तो उसको घर घर भटकने की जरूरत ना पड़े, वो डायरेक्टली हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। ये खुला रहेगा लगभग पूरे हफ्ते, यहाँ पे हमारे लोग रहेंगे, वो यहाँ पे आके हमसे अपनी बात कर सकते हैं, हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनके जो मसाइल हैं उनके हल के लिए, उनके रिड्रेसल के लिए अपनी तरफ से जो कुछ कर सकते हैं वो कोशिश करेंगे। खुसूसन इससे हमारी जो पार्टी के वर्कर हजरात हैं उनकी नेटवर्किंग और उनकी इंटरनल कम्युनिकेशन में हमें लगता है बेहतरी
होगी और हम नए अज़्म के साथ इस जोन में पार्टी को और स्ट्रेंथ देंगे। शाह साहब, अगर हम सेंटर की बात करें, सेंटर की तरफ से इशारा आया है शायद इलेक्शन हो सकते हैं। अगर हल्का इंतखाब संग्रामा जो पहले था, अब संग्रामा नहीं है, वागोरा करीरी है, आपको नहीं लग रहा है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के या पीडीपी की बात करें, नए लोग हैं, नया हल्का इंतखाब है, नए गांव है, मुश्किल होगा इलेक्शन में? देखिए, मुझे लगता है कि एक बात हम सबको समझ लेनी चाहिए कि अगर इलेक्शन होते हैं, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कुछ कहती है उनकी किसी बात का भरोसा न मुझे है और न आपको होगा। वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उनके कहने और करने में कितना फर्क होता है सबको पता है। लेकिन मान लीजिए कि इलेक्शन होता है, मुझे लगता है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, पूरे आवाम को पता है इस बार का इलेक्शन किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल लीडर का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन जम्मू कश्मीर के आवाम का इलेक्शन है, क्योंकि जिन जातियों से वो गुजर रहे हैं, जिस तरह से उनके हुकूक छीने गए हैं, जो हमारे तशख़्ख़ुस पे डाका डाला गया है, जो हमारी इज्जत नफ्स को निशाना बनाया जा रहा है, उसके चलते ये इलेक्शन अगर होता है तो ये यहाँ के अवाम का इलेक्शन होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है अवाम इस इलेक्शन में उन तमाम फोर्सेस को, उन तमाम ताकतों को हराएगी जिन्होंने हमारे इज्जत नफ्स, हमारे तशख़्ख़ुस और हमारी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की है। उनको करारा जवाब मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये काम करते हुए हमारी जो अवाम है वो यकजहती का मुजाहरा करेंगे। किसी तरह की तफरकाबाजी वो अलाउ नहीं की जाएगी, क्योंकि कोशिशें जरूर की जा रही हैं कि यहाँ के अवाम को बांटा जाए, और जहाँ बीजेपी खुद अपने नाम से लड़ना चाहती है वहाँ अपने नाम से लड़ती है, जहाँ उनको लगता है कि अपने नाम से नहीं लड़ सकती तो वहाँ अलग अलग उन्होंने पार्टियां मैदान में छोड़ रखी हैं। लेकिन यहाँ के अवाम बाशऊर हैं, उन्हें सब पता है कि क्या हो रहा है। उन्हें ये भी पता है कि अगर बीजेपी को हराना है तो न सिर्फ बीजेपी बल्कि बीजेपी से जो मुंसलिक लोग हैं, बी पार्टी है, सी पार्टी है, जो भी हैं, उनको हराना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा, अवाम का इलेक्शन है और अवाम इंशाअल्लाह अपने हुकूक की लड़ाई में उन सारी फोर्सेस को जवाब। अगर हम बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, जितने भी पॉलिटिकल रैलीज होती है, कहा जाता है कि पीडीपी जो थी, जब कोalition थी भाजपा के साथ, तब बड़े कदावर लीडर रहे थे पीडीपी में, आज पीडीपी में कुछ भी नहीं है। ये इल्जाम है पॉलिटिकल पार्टीज का। सोहेल बुखारी साहब किस नजर से इस इल्जामात को कैसे देखते हैं? बोल रहे हैं कि पीडीपी में जितने भी लीडर थे वो आज वहां नहीं है, मुश्किल होगा इलेक्शन में। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पीडीपी में दर्जनों लीडर थे जो पार्टी छोड़ के चले गए। वो क्यों चले गए, कहां चले गए, ये मुझे लगता है सारे आवाम को पता है। लेकिन आपको यह भी मानना पड़ेगा कि पार्टी का जो वर्कर है वो अपनी जगह खड़ा है। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में एक चीज तो जो हमारे सियासी हरीफ भी हैं वो भी मानते हैं, एतराफ करते हैं कि ये वाकई एक तहरीक बन चुकी है। क्योंकि तहरीक वो होती है जो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे सिर उठा के नहीं आते। ये वो तहरीक है जो आवाम के लिए मुश्किल तरीन वक्त में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बियॉन्ड भी काम करती है। और जो लीडर थे वो निकले, उन लोगों का क्या हाल हुआ वो भी आपको पता है। लेकिन पार्टी दिन ब दिन पूरे आज़म के साथ और मजबूत हो रही है। और इंशाअल्लाह चूंकि हम आवाम की जज्बात की तर्जुमानी करते हैं, हमें पूरा यकीन है कि आवाम भरपूर तरीके से इस पार्टी के सपोर्ट में। शाह साहब, आखिरी सवाल, नए लोग, नए हल्के इंतखाब, क्या खास मशक रहेगी? क्योंकि आप अपने तो हमें लग रहा है कि इलेक्शन की तैयारी में लगे हुए हैं, क्या खास मशक रहेगी उन लोगों के लिए? एक तो जो संग्रामा के साथ मुंसलिक थे, अब वागोरा करीरी है, नए इलाके है, क्या खास मशक रहेगी आज दिन के हवाले से? देखिए, मैसेज हमारा तो वही है जो हमारी कायद का मैसेज है, और वो ये है कि हम इस वक्त बहुत ही मुश्किल हालत से गुजर रहे हैं। हमारे तशख़्ख़ुस, हमारे इज्जत नफ्स, हमारी नौकरियां, हमारी एजुकेशन, इन सब चीज़ों पे डाका डाला जा रहा है, इस पे अटैक किया जा रहा है। लेकिन हमें हार नहीं माननी है, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है, और हमें अपने हुकूक के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है। और उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका और पहला जो फैक्टर रहेगा वो ये है कि हमें सबको मिल के रहना है। हमें इलाके के नाम पे नहीं बढ़ना है, हमें जात पात के नाम पे नहीं बढ़ना है, हमें सेक्ट के नाम पे नहीं बढ़ना है। क्योंकि जो हमारा दुश्मन है उसके अज़ाइम ही यही है, वो चाहता ही यही है कि हम आपस में बंटे और उनको यहाँ से कामयाबी मिले। लेकिन हमें इस चीज का आज़म करना है कि हमें एकजुट होकर रहना है, और बीजेपी आरएसएस के एजेंडे, उन पार्टीज, उन फोर्सेस को हराना है जो हमारे तशख़्ख़ुस और इज्जत नफ्स के मुखालिफ हैं। और हमें जम्मू कश्मीर के अवाम की इज्जत नफ्स, यहाँ के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एकजुट होकर इस तहरीक का हिस्सा बनना है, जिसकी बेबाक तर्जुमानी आज महबूबा मुफ्ती साहिबा और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कर रही है। आपने सर बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।